क्या नहीं हुआ? सब लोग बोल रहे नहीं चालू है। तो 30 सेकंड हो गए ना, तब तूने तभी चालू किया था ना, कि अभी चालू किया? A very good afternoon to all of you all. Am I audible as well as visible? Please let me know. You are live on economics. ऐसे बता रहा है। बता, प्रसाद से बात करा। Class at the rate 135. Okay, so very good afternoon to all of you all. How are you all, my dear friends? So I think now the lecture is audible as well as visible on the law tab. So yes, everything is perfect. Lancy, Nandini, Komal, सबने perfect, perfect, perfect कह दिया है. Mangalam, Snehal, okay. So now if everything is perfect, let us begin with this particular lecture. But now, before starting with the new topic, let me revise whatever I have done till now. We have started with the Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act, Contract Act, Contract Act 1872. What do you mean by the word contract? तो आप जानते हो, an agreement enforceable by law is a contract. An agreement enforceable by law is a contract. What do you mean by an agreement? Offer plus acceptance is an agreement. Offer plus acceptance means an agreement. और यही agreement अगर enforceable है by law, means there is a legal obligation, then my dear friends, this agreement becomes a contract. Agreement wider term, whereas contract is a narrower term. Every contract has an agreement, but every agreement may not have a contract. Yesterday we started with the essential elements of a valid contract. इसी essential elements के लिए पहले तो हमने general points देखे हैं, और ये general points कहते हैं कोई भी contract बनने के लिए कम से कम लगते हैं आप लोगों को 2 parties. जी हाँ, कोई भी contract बनने के लिए you require at least 2 parties. यही जो 2 parties है, they should be having the intention to create a legal obligation. यही 2 parties जो है, they should be having the intention to create a legal obligation.
there are certain kinds of contracts in which certain technical requirements are necessary. अगर आपका वो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा है, बेचा है, तो आपको कंपल्सरी ये कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में करना जरूरी है. इट शुड बी साइंड, इट शुड बी डेटेड, इट शुड बी स्टैम्प्ड, इट शुड बी रजिस्टर्ड. तो ये कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है. अगर आपका वैसा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको भी वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना जरूरी है. Along with that, your contract should be possible of being performed and the meaning shall be certain. इसके अलावा my dear friends, section number 10 जो है, section number 10 also gives us certain essential elements of a valid contract, starting with the first point which says कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है. एंड अग्रीमेंट वुड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ टू एलिमेंट्स, ऑफर प्लस एंड एक्सेप्टेंस. फ्री कंसेंट आज मैं पढ़ाने वाली हूं, बट मैंने बाकी के पॉइंट्स पढ़ाए थे, जैसे कि कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या पार्टीज के बीच में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है? कब माना जाएगा दैट यू हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? कम ऑन, कैन यू टेल मी व्हेन विल इट बी कंसिडर्ड दैट यू हैव द लीगल एबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? इफ यू आर अ मेजर, you are having a sound mind, and if you are not disqualified by law, you will be able to enter into a contract. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या कंसिडरेशन का होना जरूरी है? जी हाँ, कंसिडरेशन मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न. इसी का लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यो. नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. कंसिडरेशन होना तो जरूरी है. अलॉन्ग विद दैट, योर कंसिडरेशन शैल ऑल्सो बी लॉफुल. Object of the contract shall also be lawful, and it should not be something that is declared void. ये जो void वाला point है, point number last, 6th point will be done in unit number 3. Currently I am going to point number 2, which is relating to free consent. तो सुनिए मेरी बात. Free consent. Indian Contract Act. Okay. First of all, let me tell you, now everyone has to suspend whatever you all are doing. Okay? You all only are supposed to concentrate on law. Sit straight like good children, your eyes and ears open. अब मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूं, so till that time I don't want any disturbance from you all. सुनो मेरी बात, ठीक है? पहली बात तो, जब कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको वैलिड चाहिए, both the parties should think about the same thing in the same sense at the same time. वापस से, both the parties should think about the same thing in the same sense at the same time. इसी को हम लोग लैटिन में कहते हैं consensus ad idiom. इसी को हम क्या कहते हैं? consensus ad idiom. Means both the parties to the contract should think about the same thing in the same sense at the same time. अगर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, इसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में मीटिंग ऑफ माइंड्स. अगर आपकी मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, देन योर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी वैलिड. अब देखो, दोनों भी पार्टीज आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग in the same sense at the same time, but along with that act says what we also require is the free consent of both the parties. आप अगर गौर फरमाओगे, इस शब्द में दो चीजें इन्वॉल्व्ड है. इस शब्द में दो चीजें इन्वॉल्व्ड है. पहली बात तो, the contracting parties must give their consent. The contracting parties must give their consent. Consent मतलब मंजूरी. और कंसेंट के साथ साथ एक्ट ये भी कहती है their consent should be free. हाँ, their consent should be free.
तो पहली बात तो वी वॉन्ट देयर कंसेंट, और कंसेंट के साथ साथ हम कह रहे हैं उनका कंसेंट हमें फ्री भी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, मैम, ओ मैम, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट? अब एक्ट कहती है एनी कंसेंट that you got, any consent that you got which is not caused by any consent that you got which is not caused by, क्या आप लोग बोल सकते हो? विच इज नॉट कॉज्ड बाय 5 थिंग्स. वॉट आर दीज 5 थिंग्स? कैन यू आंसर मी? आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड. राशि ने सबसे सही जवाब दिया है. व्हेन योर कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, misrepresentation and mistake, it will be considered as if your consent is a free consent. कुछ बच्चों ने कोअर्शन लिखा है, कुछ बच्चों ने अनड्यू इन्फ्लुएंस लिखा है, किसी ने मिसरिप्रेजेंटेशन लिखा है, किसी ने मिस्टेक लिखा है. बट लेट मी टेल यू, द कंप्लीट करेक्ट आंसर वुड बी, एक्ट के हिसाब से माना जाएगा कि आपका कंसेंट फ्री है इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, misrepresentation and mistake. So basically there are 5 terms that you need to know, और इन्हीं 5 चीजों के बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं, starting with the first point, and that is coercion. Okay, what do you mean by coercion? Let me give you a brief introduction about this topic. फिजिकल प्रेशर क्रिएट करना मीन्स कोअर्शन. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल गन पॉइंट में किसी ने आपको मजबूर किया है कि आपका ये जो घर है उसके नाम पे कर दे. अब यहां पे आपने कंसेंट तो दिया है क्योंकि आप कह रहे हो घर चलेगा, जान नहीं जानी चाहिए. यहां पे आपने कंसेंट तो दिया है. कंसेंट देना मतलब मंजूरी देना, हाँ बोलना टू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. आपने हाँ तो कह दिया है क्योंकि आप डरे हुए हो. आपको लग रहा है अगर ये मेरी जान ले लेगा तो अब क्या करूंगा मैं प्रॉपर्टी का. प्रॉपर्टी चले जाए चलेगा बट जान नहीं जानी चाहिए. आपने हाँ कह दिया है उसे कि जी हाँ आप ले लो मेरा घर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है. बट यहां पे आपका कंसेंट फ्री नहीं था. इट वॉज अंडर सम फिजिकल प्रेशर. गन पॉइंट पे उसने आपको थ्रेटन किया कि हे मिस्टर, अगर आपने ये घर मेरे नाम पे नहीं किया मैं आपको मार दूंगा, जान ले लूंगा मैं आपकी, फिर देखते हैं क्या होगा. अब ऐसे केस में आपने कंसेंट दिया है, बट यहां पे आपका कंसेंट फ्री नहीं है. माना जाएगा कि आपका कंसेंट हैज बीन कॉज्ड बाय कोअर्शन. आपका कंसेंट हैज बीन कॉज्ड बाय कोअर्शन. कोअर्शन मतलब फिजिकल प्रेशर अप्लाई करना. पीपीटी बुक्स में जिससे आप देख ही सकते हो, देखो यहां पे क्या हुआ है. नाना पाटेकर ने गन पॉइंट पे आरके को थ्रेटन किया, कहा कि हे आरके, तू मुझे 20 लाख का लोन दे, वो भी विदाउट टेकिंग एनी इंटरेस्ट फ्रॉम मी, और ये लोन मैं रीपे करना चाहूंगा तो करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, मेरी मर्जी मेरा मन. अब ऐसे केस में ऑब्वियस ही बात है 20 लाख रुपए से तो ज्यादा आरके को अपनी जान की कीमत है. तो अब वो ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपना कंसेंट देता है, बट यहां पे उसका कंसेंट फ्री
नहीं माना जाएगा. माना जाएगा that his consent has been given under coercion. coercion मतलब physical pressure. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे आपका कंसेंट फ्री नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होते हैं. आगे मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, आज ही मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्चुअली वॉइडेबल इन नेचर. बट नाउ what we are looking under section number 10 are essentials of a valid contract. So we want valid contract के essentials. तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, हम कह सकते हैं any contract that is caused under coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake cannot be considered as valid contracts. तो यहां पे इस एग्जाम्पल में ये कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड नहीं मान सकते हैं. यहां पे इस एग्जाम्पल में हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मान सकते हैं. यस, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइडेबल. कुछ कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, जैसे कि शुभम ने, गौरव ने, निशांत ने, श्याम ने, दिव्यांशु ने, रिकी ने, प्रियल ने. वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स. यस, these contracts are voidable, agreed, but I am assuming that आपको voidable का concept नहीं पता है, इसीलिए मैं आपके बेसिक से इस टॉपिक को लेके जा रही हूं. such contracts are not valid, they are not valid, agreed they are voidable, but वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी. currently इतना समझ लो, these contracts are not valid in nature. Why? Because these contracts were created under coercion. These contracts were created under coercion. These contracts were created under coercion. तो सबसे पहला टर्म जो हमने देखा है वो है coercion. सब लोग मेरे साथ बोलो तो क्या है ये टर्म? coercion. coercion मतलब whenever you are applying physical pressure in order to get the contract done is known as coercion. Next point, my dear friends, undue influence. Next point is talking about undue influence. नाम में लिखा है undue influence, मतलब आपकी influence का आप गैर फायदा उठा रहे हो. आपकी influence का आप गैर फायदा उठा रहे हो, उसी को कहते हैं as undue influence. उसी को क्या कहते हैं बोलो तो बच्चों? undue influence. आपकी पोजीशन का आप गैर फायदा, अनड्यू एडवांटेज उठा रहे हो, उसी को कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, आपकी कॉलेज की टीचर आपको बोल रही है कि अगर आप चाहते हो आप बीकॉम में पास हो जाओ, आपकी ये जो गाड़ी है वो मुझे गिफ्ट कर दो. अब यहां पे टीचर ने अपनी पोजीशन का गैर फायदा उठाया है और आपको कह रही है कि अगर आप पास होना चाहते हो, आपकी कार उन्हें बर्थडे में गिफ्ट कर दे. अब यहां पे आप हां तो कह दोगे बिकॉज यू डोंट वांट टू फेल बीकॉम. मतलब अगर आप बीकॉम फेल हो जाओगे, आपकी इज्जत क्या रहेगी मार्केट में, राइट? आप आपकी कार उनको दे तो देते हो, बट यहां पे आपका कंसेंट फ्री नहीं था. इट वॉज कॉज्ड अंडर इन्फ्लुएंस. आपने हां बोला बट इन्फ्लुएंस में आके आपने हाँ बोला है. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम वैलिड नहीं मानेंगे. अगर आप देखोगे, कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस दोनों में एक प्रेशर क्रिएटेड है, बट कोर्शन में देयर वाज अ फिजिकल प्रेशर, वेयर एज अनड्यू इन्फ्लुएंस में द प्रेशर इज मॉरल. इट इज मोर मेंटल एज कंपेयर टू फिजिकल. यहां पे टीचर ने क्या आपको मारने की, जान लेने की धमकी नहीं दी है, बट इट इज मोर साइकोलॉजिकल एंड मेंटल. अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपका प्रेशर फिजिकल नहीं होता है, इट इज मोर मेंटल एंड इट इज मोर मॉरल इन नेचर. और यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस में सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज एग्जिस्टिंग बिटवीन यू एंड द अदर पार्टी. जबकि कोर्शन में इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी.
Another example of undue influence could be a lawyer and his client. बेचारे क्लाइंट ने सब सच बोल दिया लॉयर को, ये सोचते हुए कि अब लॉयर उसको बचाएगा. अनफॉर्चुनेटली लॉयर बड़ा ही शैतान निकला. ही शुड हैव मेंटेन्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, बट अब वो क्या कर रहा है, क्लाइंट को ही धमका रहा है, हे क्लाइंट मुझे 50 लाख रुपए ट्रांसफर कीजिए या मेरी वाइफ की बर्थडे पार्टी 5 स्टार होटल में थ्रो कीजिए, तो ही आई विल कीप माई माउथ शट, अदरवाइज मीडिया के सामने मैं आपका पर्दाफाश कर लूंगा. वॉट इज दिस? ही इज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज पोजिशन. इसी को कहते हैं एज अनड्यू इन्फ्लुएंस. इसी को क्या कहते हैं बोलो तो बच्चों? अनड्यू इन्फ्लुएंस. यहां पे फिजिकल प्रेशर, यहां पे मॉरल प्रेशर, ये कोर्शन है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है. आपकी स्क्रीन के सामने आपको एक पीपीटी नजर आ रहा होगा. देखो ये पीपीटी क्या कह रहा है. यहां पे देयर इज एन ओल्ड वीक फादर who has only one who has say he has 3 sons, but only one son, the youngest son, is the one who is taking care of him. अब ये जो सबसे छोटा बेटा है वो कह रहा है कि हे पापा, आपकी जो भी सारी प्रॉपर्टी है आप मेरे नाम पे कर लो, नहीं तो मैं आपका ख्याल रखना बंद कर दूंगा. वैसे भी दोनों भी जो बड़े भाई है वो आपका कुछ ख्याल रख रहे नहीं है, उनके घर तक मैं आने नहीं दे रहे हैं, तो अब आपके पास कोई दूसरी जगह नहीं है जहां पे आप जा सकते हो. अगर आप चाहते हो कि मैं आपका ख्याल रखूं और मैं आपको इस घर में एंट्री दूं, तो अब ऐसे केस में आपकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए. बेचारे कमजोर बूढ़े पापा के पास और कोई चारा भी नहीं था. उन्होंने ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दी. अब उस केस में देखो ना यहां पे क्या हुआ है, प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे ट्रांसफर हुई है, बट यहां पे पापा का कंसेंट फ्री नहीं है. इट हैज बीन कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस बाय हिज सन. सच कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो देखो 2 टर्म्स हमारे अभी तक हुए हैं. यस, वेरी गुड. नंदिनी कह रही है अनदर एग्जाम्पल कुड बी अ मास्टर एंड हिज सर्वेंट. वेरी गुड. कनक ने भी वही एग्जाम्पल दिया था. एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, निराली, वेरी गुड. राशि भी वही कह रही है मैम, सीनियर टेक्स एडवांटेज ऑफ द जूनियर. सो यस, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो देखो अब 2 केसेस में कहां पे कंसेंट फ्री नहीं होता है. 1 in case of coercion and second is undue influence. अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, and that is fraud and misrepresentation. हाँ, और यही fraud and misrepresentation मैं आपको बताना चाहती हूं थ्रू 1 एग्जाम्पल itself, और उसी 1 एग्जाम्पल से दोनों भी चीजें कवर करना चाहती हूं. देखो यहां पे क्या हुआ है. ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. देखो यहां पे क्या हुआ है. सबसे पहले कपिल जी जो है वो आलिया के पास आते हैं और कहते हैं, हे आलिया देखो, आई हैव दिस वाटर प्यूरिफायर एंड दिस वाटर प्यूरिफायर हैज 10 बेनिफिट्स. इसी 10 बेनिफिट्स को सच समझते हुए आलिया परचेज दिस वाटर प्यूरिफायर. बट जब उसने ये वाटर प्यूरिफायर खरीदा, देखो रो रही है उन्होंने. क्यों रो रही है वो? बिकॉज शी अंडरस्टूड दैट वो 10 बेनिफिट्स में से रियलिटी में दिस वाटर प्योरीफायर इज ओनली गिविंग 4 बेनिफिट्स. 6 बेनिफिट्स जो है वो झूठे बताए गए थे बाय कपिल टू हर. क्या आलिया के साथ गलत हुआ है? बोलो ना मुझे, क्या आलिया के साथ गलत हुआ है? जी हां, आलिया के साथ गलत हुआ है. अब उस केस में देखो, आलिया के साथ गलत हुआ है, ये सब लोग अग्री करते हैं. आलिया के साथ गलत हुआ है, ये सब लोग अग्री करते हैं. बट नाउ अगर ये झूठी बातें जानबूझ के बोली गई थी, मतलब देयर इज एन इंटेंशनल, ओके, इंटेंशनली आपने किसी को झूठी बातें बोली है, तब उस केस में माय डियर फ्रेंड्स इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड. बट अगर से फॉर एग्जांपल कपिल इज जस्ट अ सेल्स पर्सन, उसको तो जो सेल्स मैनेजर ने कहा था वही उसने कस्टमर को बोला था.
ही वॉज नॉट अवेयर कि ये 10 में से एक्चुअली सिर्फ 4 ही बेनिफिट्स अवेलेबल है और 6 झूठे हैं. अब उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मिस स्टेटमेंट इनोसेंटली किया है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिस रिप्रेजेंटेशन. देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिस रिप्रेजेंटेशन. आप समझने की कोशिश कीजिए, चाहे ये फ्रॉड है या चाहे ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, चाहे ये फ्रॉड है या चाहे ये मिस रिप्रेजेंटेशन है. मिस्टर डूड, हे डूड, यू हैव सम प्रॉब्लम. आप ऐसे स्माइलीज क्यों भेज रहे हो ग्रुप में? ओके, चाहे ये फ्रॉड है या चाहे ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, डज नॉट रियली मैटर. दोनों भी केसेस में झूठी बातें आलिया को बोली गई थी और उसके साथ धोखा हुआ है. और इसीलिए एक्ट कहती है, चाहे आपने जानबूझ के झूठ बोला है या गलती से आपने झूठ बोला है, फर्क नहीं पड़ता है. इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और यहां पे आलिया का कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर उसको सच पता होता कि इस वाटर प्योरीफायर में 10 नहीं 4 ही बेनिफिट्स है, चाहे वो हो सकता है शायद वो प्रोडक्ट को ना खरीदती, हो सकता है कि शायद वो प्रोडक्ट को ना खरीदती. हाँ, तो इसीलिए एक्ट कहती है माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है. तो अब देखो 4 पॉइंट्स, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कब कब कंसेंट फ्री नहीं होता है? कम ऑन, फास्ट फास्ट. 4 पॉइंट्स कब कब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कंसेंट फ्री नहीं होता है. कब कब आपका कंसेंट जो है वो फ्री नहीं होता है? बोलिए. वेरी गुड काजल. नंदनी, क्या बात है. उर्वशी, व्हाट इज रॉन्ग विद द बॉयज? व्हाई आरंट द बॉयज आंसरिंग? सम प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स? सो अभी तक मैंने आपको बताया है 4 केसेस में आपका कंसेंट फ्री नहीं होता है. कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन. एक आखिरी पॉइंट है मिस्टेक, बट मिस्टेक विल बी टॉट टू यू ऑल इन यूनिट नंबर 3. तो अब देखो हमारे सेक्शन 10 के कौन से पॉइंट्स खत्म हो गए हैं. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है. अग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. Parties should be having the capacity to enter into a contract. कब माना जाएगा that you have the capacity to enter into a contract? When you are major, sound mind and not disqualified by law. Consideration का होना जरूरी है. No consideration, no contract. Along with that, consideration shall be lawful. Your object shall be lawful and your consent shall be free. Free consent means a consent which is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. I told you all point number 6 will be done in unit number 3. So this is all about section number 10. मैं क्या करूंगी, एक छोटा सा सॉन्ग प्ले कर लेती हूँ अभी, और उसी के बाद I am going to move to the next concept which is relating to the types of contracts. Because types of contracts is a lengthy topic, I will just play a nice song for you all and then we can start with the topic. क्या आपको सॉन्ग की आवाज आ रही है? अरे सॉन्ग प्ले करना था, आवाज नहीं आ रही है.
कैन यू ऑल, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? मुझे तो सॉन्ग की आवाज ही नहीं आ रही है. Okay, so the break time's over. Check. Okay. आ जाइए on the next concept, which is relating to the types of contracts. क्लास रहने नहीं दे सकते बेटा. नेक्स्ट टाइम सॉन्ग रहने दूंगी बट क्लास नहीं रहने दे सकते. check. Okay. Types of contracts. Okay, I know you all are back, even I am back. Come on. सबसे पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, आपको दिख रहा है आपके चार्ट बुक पे, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, चार्ट नंबर 1.2. अभी तक तो हमारा पिछले 2 दिनों में एक ही चार्ट कंप्लीट हुआ है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ चार्ट नंबर 1.2. What is this point talking about? It is talking about types of contract. So अलग अलग बेसिस पे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है. सबसे पहला जो टाइप है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. सो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स. द फर्स्ट, which is the most easiest, is a valid contract. So what do you mean by a valid contract? ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हर वो कोई एसेंशियल जो एक्ट में दिया गया है वो प्रेजेंट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हर वो कोई चीज जो प्रेजेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अगर वो प्रेजेंट है, देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट, माय डियर फ्रेंड्स, इज नोन एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, लीगल ऑब्लिगेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह. कल हमने जो कुछ भी देखा है, हर वो कोई चीज जो प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर वो प्रेजेंट है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2 जो है, देखो पॉइंट नंबर 1 रीड करते हैं. व्हाट इज पॉइंट नंबर 1 सेइंग? अग्रीमेंट व्हिच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. It means what? Basically, it contains all the essential elements of a valid contract. It contains all the essential elements of a valid contract. Second point जो है, point number 2 is talking about a void contract. Void का मतलब होता है invalid. Void का मतलब क्या होता है? Invalid. But now, what is a void contract? सुनो ना मेरी बात. What is a void contract? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली तो वैलिड था. हाँ, आपने एकदम सही सुना है. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली तो वैलिड था. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली तो वैलिड था, but later on performing that contract was not possible. But later on ऐसी कोई घटना हुई, ऐसा कोई हादसा हुआ जिसकी वजह से अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है.
तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं वापस से कहना चाहती हूं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली तो वैलिड था, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली तो वैलिड था, बट लेटर ऑन ऐसी कोई घटना हुई, ऐसा कुछ हादसा हुआ जिसके वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सी फॉर एग्जाम्पल पर्पस, यहां पे क्या हुआ है, देर आर टू पार्टीज, अ बायर एंड अ सेलर, और इन्हीं दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना है टू ऑब्वियसली बाय एंड सेल दिस पर्टिकुलर हाउस। यही कॉन्ट्रैक्ट कब बना? 1 जनवरी। यही कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इन दोनों पार्टीज के बीच में कब एग्जीक्यूट हुआ, कब बना, कब फॉर्म हुआ? सॉरी, इट वाज फॉर्म ऑन द 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बना कि मैं घर बेचूंगा और ये घर खरीदेगा। बट एक्चुअल में परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट was to be done on the 10th जनवरी। 1 तारीख को हम दोनों ने रिटन में अग्री कर लिया कि 10 तारीख को मैं आपको घर बेचूंगा और आप मुझसे ये घर खरीदोगे, और इसी के लिए 2 लाख का टोकन भी दिया गया था। ठीक है, तो 2 लाख का टोकन अमाउंट वॉज गिवन, बट एक्चुअल में घर बेचा और खरीदा जाने वाला था ऑन द 10th जनवरी। आज क्या है? 1 जनवरी। घर को एक्चुअली खरीदने और बेचने कब वाले हो? 10th जनवरी को। अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद, बट परफॉर्मेंस के पहले, अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद बट परफॉर्म करने के पहले एक अनहोनी घटना हो गई और घर जो है वो जल के खाक बन गया। ओके, यही घटना 7 तारीख को हुई। अब जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हम बातें कर रहे थे खरीदने की और बेचने की, वही सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो क्या 10 तारीख को अब घर को बेच पाओगे या खरीद पाओगे? इज इट पॉसिबल ऑफ परफॉर्मिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ परफॉर्मिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। आज के डेट पे ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। इनिशियली जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था तब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल था। आज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स जब बने थे तब वैलिड थे, बट बाद में ऐसी कोई घटना घटती है जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज वॉइड contracts. Such contracts are known as void contracts. So देखो, a contract basically which ceases to be enforceable. Cease हो जाना मतलब stop हो जाना, मतलब initially it was enforceable but now it is not enforceable. Such contracts are known as void contracts. Such contracts are known as void contracts. किसी ने पूछा है मैम ये 2 लाख रुपए का क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, अब क्योंकि आपने घर नहीं दिया है और घर के बदले में जो आपको एडवांस मिला है वो आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो यस, वेरी गुड। गौरव और गौरव, दोनों भी गौरव ने सही जवाब दिया है इस बच्चे के जवाब के लिए। श्रुति ने भी जवाब दिया है और शुभम ने भी जवाब दिया है। आप चारों भी बच्चों का जवाब बिल्कुल भी सही है। तो बेटा, what will happen is this 2 lakh rupees will be returned back to the buyer, क्योंकि अगर आपने घर नहीं बेचा है आप उसका एडवांस भी अपने पास नहीं रख सकते। You will have to return this money to whom it actually belonged. So yes, सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे कहना हो, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली वैलिड था but later on it is not possible to perform such a contract. Such contracts are known as void contracts. Such contracts are known as void contracts. अब आ जाओ
to the third point, and that is voidable contracts. नाम में लिखा है voidable contracts. Voidable contracts. Voidable contracts. This voidable word, if you realize, is made up of two words. Voidable मतलब ऐसा कोई contract which is able to be void is known as a voidable contract. ऐसा कोई contract which is able to be void, which is able to be void, which is able to be void is known as a voidable contract. Which is able to be void is known as a voidable contract. आप याद कीजिए जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, कौन सा वाला एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ऑफ, सुनो ना मेरी बात, एग्जाम्पल ऑफ नाना पाटेकर. ओके, या तो फिर एग्जाम्पल ऑफ दैट ओल्ड वीक फादर एंड हिज यंगेस्ट सन. जहां कहीं पे भी आपका कंसेंट फ्री नहीं होता है, जहां कहीं पे भी आपका कंसेंट फ्री नहीं होता, या तो फिर आपकी फेवरेट आलिया का एग्जाम्पल, जहां कहीं पे भी आपका कंसेंट फ्री नहीं होता है. आपका कंसेंट कब कब फ्री नहीं होता है? व्हेन योर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड बाय कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. जहां कहीं पे भी आपका कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है, such contracts are actually known as voidable contracts. Such contracts are actually known as voidable contracts. Such contracts are actually known as voidable contracts. Such contracts are actually known as what? Come on, tell me guys. Voidable contracts. Able to be void. क्या मतलब होता है मैम voidable contracts का? अब देखो, जहां पे वो अग्रीव्ड फादर थे, अग्रीव मतलब बेसिकली जिनके साथ गलत हुआ है, दुखी आत्मा. ओके, तो जैसे आलिया के साथ गलत हुआ है, आरके के साथ गलत हुआ है, या तो वो ओल्ड वीक फादर के साथ गलत हुआ है. अब तब तो उन्होंने कंसेंट दे दिया, क्योंकि हो सकता है गन पॉइंट का प्रेशर था या मॉरल प्रेशर था, या से उनको लगा कि जो भी कपिल ने कहा है वो सच है. यू बिलीव्ड इन कपिल्स बातें एंड यू बॉट दैट वाटर प्यूरिफायर. बाद में आपको पता चला आपके साथ धोखा हुआ है. अब आपके पास दो ऑप्शन है. आपके पास क्या है? दो ऑप्शन है. वन, यू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड. यू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड. तो आप जाओ इन द कोर्ट ऑफ लॉ और कहो, हे जज साहब देखो, इस बंदे को मैंने 20 लाख रुपए दिए हैं, बट नाउ आई गेव दिस मनी बिकॉज आई वॉज थ्रेटेन्ड टू डेथ, कि अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो ये मेरी जान ले लेगा. यहां पे मैंने कंसेंट जरूर दिया है जज साहब, बट मेरा कंसेंट फ्री नहीं है. सिमिलरली आलिया कहेगी, हे जज साहब देखो, इस बंदे ने मुझे ये 10 बेनिफिट्स कहे थे, बिलीव करते हुए कि इस वाटर प्योरीफायर में ये 10 बेनिफिट्स है, मैंने ये वाटर प्योरीफायर को खरीदा, बट रियलिटी में जज साहब ये सिर्फ 4 बेनिफिट्स ही सही निकले, बाकी बातें झूठी निकली. अब मुझे ये वाटर प्योरीफायर नहीं चाहिए, आप ये वाटर प्योरीफायर ले लीजिए, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए. मतलब हमने क्या किया यहां पे? हमने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ट्रीट किया है. क्या किया है हमने यहां पे? कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ट्रीट किया है. बट देखो, अगर आरके चुप रहता है, बूढ़े पिताजी चुप रहते हैं, या आलिया कहती है वो वाटर प्योरीफायर 5,000 रुपए का है, लॉयर की फीस ही 10,000 रुपए होगी, लेट मी कीप माई माउथ शट, समझ लो ये 5,000 रुपए डोनेट कर दिए उस कंपनी को. अब ऐसे केस में देन द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देन द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अगर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हो और आपके साथ जो गलत हुआ है उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हो, तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा. अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट विच इज एबल टू बी वॉइड, able to be void is known as a voidable contract, is known as a voidable contract, is known as a voidable contract. So basically such contracts
which are enforceable by law at the option of one of the parties and not at the option of the other party is known as a voidable contract. अगर मैं चाहूँ तो उसको valid treat करूँ, अगर मैं चाहूँ I can take action against the other party and I can treat the contract to be a void contract. Something wrong with you guys? यस अग्रीव पार्टी जो है, अग्रीव पार्टी मतलब वो दुखी आत्मा, दुखी आत्मा मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, जैसे कि बूढ़े पिताजी के साथ गलत हुआ है, आरके के साथ गलत हुआ है, आलिया के साथ गलत हुआ है, वो क्लाइंट के साथ गलत हुआ है, या वो मास्टर और सर्वेंट के केस में सर्वेंट के साथ गलत हुआ है, ये लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन टेक एन एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अगर उन्होंने एक्शन लिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. और अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो देखो बड़े ही खूब तरीके से लॉ मेकर ने आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले रखे हैं, बट अब आपका राइट है, अगर आप चाहो आप एक्सरसाइज करो और अगर आप ना चाहो तो आप एक्सरसाइज ना करो. अगर आपने राइट को एक्सरसाइज किया then the lawmakers are with you and will treat the contract to be void. But if you keep your mouth shut, unfortunately, even the lawmakers will not be able to help you out and the contract will remain to be a valid contract. Such a contract is known as a voidable contract. Such a contract is known as a, come on, tell me, voidable contract. तो देखो 3 contracts के types हमारे हो चुके हैं. Valid, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हर वो कोई चीज जो प्रेजेंट होनी चाहिए वो प्रेजेंट है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. मतलब जब तक सारी चीजें सही थी तब तक वो वैलिड था, बट जब परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है तब से वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा. और वॉइडेबल, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of the other parties will be regarded as a voidable contract. जी हाँ, will be regarded as a voidable contract. Differentiation read करना आपका homework होगा, ठीक है? So you all are supposed to read the differentiation between a void contract and a voidable contract. And you have to tell me this differentiation tomorrow when I will ask you in the discussion. तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे पता है आप बहुत आलसी हो जाओगे और आप रीड भी नहीं करोगे, है ना? तो मैं इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ. एंड टुमारो आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस. सो वही बच्चे जिन्होंने पढ़ाई की है विल बी इन अ पोजिशन टू गिव मी द आंसर्स. ओके, नेक्स्ट, 4th and 5th पॉइंट, illegal contract and unenforceable contract. सुनो ना, illegal contract. एक्चुअली तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कहना भी गलत है. एक्चुअली तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कहना भी गलत है. इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एन इलीगल अग्रीमेंट. देखो ना, ऐसा कोई अग्रीमेंट जिसमें जो लॉ ने फॉरबिड किया है, फॉरबिड किया है मतलब प्रोहिबिट किया है, ऐसे अग्रीमेंट को कहते हैं एज एन इलीगल अग्रीमेंट. जैसे कि से फॉर एग्जांपल ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू किल सी. मुझे बताओ, किसी का खून करना, किसी का मर्डर करना क्या लॉ में अलाउड है? ऑफ कोर्स नॉट. किलिंग समबडी और किसी का खून करना, मर्डर करना इज फॉरबिडन बाय आवर लॉज. इट इज फॉरबिडन करना मतलब बैंड है, प्रोहिबिटेड है. इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस माय डियर फ्रेंड्स. अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट आप किसी के साथ करते हो जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज नोन एज एन इलीगल अग्रीमेंट. तो मैं तो चाहूंगी इनफैक्ट आप यहां पे कॉन्ट्रैक्ट शब्द को हटा के अग्रीमेंट ही लिख दो, क्योंकि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है. बिकॉज वन ऑफ द
elements is missing over here to form a valid contract, and that is a lawful object. यहां पे आपका ऑब्जेक्ट ही ऐसा कुछ है जो लॉ मेकर ने प्रोहिबिट किया है, फॉरबिडन किया है. फॉरबिडन करना मतलब प्रोहिबिट करना, बैन करना. तो ऐसी चीज आप कर ही नहीं सकते हो. यस, वेरी गुड. कोई बच्चे कह रहे इट इज वॉइड एब इनिशियो. परफेक्टो, एकदम परफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स. वॉइड एब इनिशियो. वॉइड मतलब इनवैलिड, एब इनिशियो मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. यहां पे कभी कॉन्ट्रैक्ट हमारा बना ही नहीं था. इट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो ऐसा कोई अग्रीमेंट जिसके द्वारा आपने कोई ऐसा काम करने का डिसाइड किया है जिसको कानून ने प्रोहिबिट किया है, ऐसे अग्रीमेंट को हम मानेंगे एज एन इलीगल अग्रीमेंट. यस, ठीक है. नेक्स्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट? अब सुनो, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज गुड इन सब्सटेंस. ओके, तो ऐसे तो सब कुछ सही है, बट नाउ देर इज अ सर्टेन टेक्निकल डिफेक्ट. देर इज अ सर्टेन टेक्निकल डिफेक्ट. सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. बट बिकॉज इट इज गुड इन सब्सटेंस, इट्स नॉट अ बिग डील. आप ये टेक्निकल डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हो, और जैसे ही आप ये टेक्निकल डिफेक्ट को करेक्ट कर लेते हो, माय डियर फ्रेंड्स, दिस अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एनफोर्सेबल. देन दिस अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एनफोर्सेबल. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपका बर्थडे है और आपके बर्थडे पे मैं आपको एक 5 लाख रुपए का चेक देती हूं. आज की डेट लिखती हूं, पे आपका नाम लिखती हूं, अमाउंट 5 लाख रुपीज वर्ड्स में, फिगर्स में, सब कुछ कर देती हूं एक्सेप्ट फॉर साइनिंग दिस चेक. अब देखो, दिस चेक ओके इज गुड इन सब्सटेंस, सब कुछ सही है. ओके, सब कुछ सही है, बट नाउ there is one thing that is missing. There is a technical defect in this check. And what is this technical defect? That there is no signature of the drawer of the check which is required. ये एक टेक्निकल डिफेक्ट है, बट बिकॉज दिस टेक्निकल डिफेक्ट इज देयर, अनफॉर्चुनेटली आप ये चेक का अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते हो. सो बेसिकली इट इज अनएनफोर्सेबल इन नेचर. बट अब मुझे बता, मैं आपको चेक दे देती हूँ एनवोलोप में, मस्त हैप्पी बर्थडे मस्त लिख के, स्माइलीज वाइलीज बना के, कार्ड दे के, बट जैसे ही आप इसको ओपन करते हो यू रियलाइज दैट देयर इज नो साइन. फिर आप आते हो मेरे पास और कहते हो, मैम, ओ मैम, शायद से आप साइन करना भूल गए. अब जब मैं साइन करती हूँ, ये टेक्निकल डिफेक्ट को क्या मैं करेक्ट कर लेती हूँ? अब जब मैं साइन करती हूं, क्या मैं ये टेक्निकल डिफेक्ट को करेक्ट कर लेती हूं माय डियर फ्रेंड्स? यस, आई एम नाउ करेक्टिंग माय टेक्निकल डिफेक्ट. सो व्हेनेवर आई करेक्ट माय टेक्निकल डिफेक्ट्स, this unenforceable contract becomes enforceable in nature. This unenforceable contract becomes enforceable in nature. किसी ने पूछा है, मैम, कैन इट बिकम एनफोर्सेबल अगेन? यस कशिश, एज सून एज आई करेक्ट द डिफेक्ट, द अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एनफोर्सेबल इन नेचर. सिंपल. हाँ, बाकी सारी चीजें तो सही है ना, 2 पार्टीज है, कॉम्पिटेंट है एंड वगैरह वगैरह, तो इसीलिए इट इज गुड इन सब्सटेंस. सिर्फ देर इज सम टेक्निकल डिफेक्ट. As soon as you correct the technical defect, it becomes enforceable in nature. तो अब देखो, वापस से मुझे बताओ, अब हमारे पांचों भी टाइप्स हो गए. ओके, on the basis of enforceability, or on the basis of validity, आपको जो अच्छा लगता है आप कह सकते हो. Contracts are divided into 5 types. Can you tell me these 5 types? 1, valid, void, voidable,
इलीगल अग्रीमेंट्स एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। सब लोग मेरे साथ बोल सकते हो क्या? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स: वैलिड, void, voidable, illegal and unenforceable contracts. Yes or no guys? Yes. और आज का आपका दूसरा होमवर्क जो है वो है to also read the differentiation between void agreement and an illegal agreement. सिर्फ मुझे लगता है आपको एक पॉइंट नहीं समझेगा, दिस इज दिस पॉइंट, कोलैटरल अग्रीमेंट, ये मैं आपको सिखाऊंगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द अदर डिफरेंशिएशन यू आर सपोज टू रीड। तो देखो आपको 2 चीजें होमवर्क के लिए रीडिंग में है आज: डिफरेंशिएशन बिटवीन अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन अ वॉइड अग्रीमेंट एंड एन इलीगल अग्रीमेंट। ठीक है, वॉइड अग्रीमेंट मतलब वॉइड एब इनिशियो, ये चीज आप जानते हो, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब पहले वॉइड था, अब सॉरी पहले वैलिड था, अब वो वॉइड हो चुका है। ओए बाय बाय नहीं बोलना है सुयश, लेक्चर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ मुझे याद आया इसलिए मैंने आपको होमवर्क बताया है। मैं ये पूरे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को फिनिश करने वाली हूं, जिसके बाद ही आपको छुट्टी दी जाने वाली है। अभी छुट्टी नहीं मिली है, रुको रुको, I still have 15 minutes in my hand. Come on. इतने आसानी से आपको नहीं छोड़ूंगी मैं, है ना? चलो आ जाओ। हाँ ना, होमवर्क दिया तो फिर बोलने लग गया बाय बाय मैम। मेरी हैबिट ऐसी है कि जैसे ही मुझे क्लिक होता है या दिखाई देता है मैं तुरंत बोल देती हूँ ये आज का होमवर्क है, ऐसे एंड में नहीं बोलती हूँ। उसकी भी बेचारे की कोई गलती नहीं है, अभी तीसरा दिन तो है कि हम लोग मिले हैं, सो माइट बी यू आर नॉट नोइंग द पैटर्न इन विच आई कंडक्ट द लेक्चर्स। कोई बेचारा बेचारा नहीं है वो, ठीक है? आ जाइए नेक्स्ट। On the basis of formation, my dear friends, contracts are divided into 5 types. On the basis of formation, hey dude, I don't know what your name is, मुझे भी आप लोगों को पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है ना? अच्छा, आप लोगों को भी मेरा साथ नहीं छोड़ना है, बढ़िया है, फाइनल तक साथ में लेके जाओगे आप लोगों को, ठीक है? आ जाइए। थैंक यू सो मच कशिश, थैंक यू। सुनो ना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कंपनी, देखो मैं कंपनी बोल रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। सबसे पहला जो है, is express contract, implied contract, tacit, quasi and e contracts। एक एक करके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स हम देखते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखो हम कौन सा बेसिस देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉर्म कैसे किया जाता है, सबसे पहला जो सबसे इजीएस्ट है, एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड थ्रू द एक्सप्रेस मोड। अब आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? या तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो ओरली, या तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन राइटिंग। तो अगर मुझे आपको कुछ कहना है या आपको किसी को कुछ कहना है तो या तो आप ओरली कह सकते हो या तो फिर आप इन राइटिंग कह सकते हो। तो अब जब कभी भी यू हैव एक्सप्रेस्ड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दिस कैन ईदर बी डन ओरली और दिस कैन बी डन इन राइटिंग। बट आप लोग जानते हो बहुत बार चीजें जो होती है वो कही या लिखी नहीं जाती है, वो समझी जाती है, राइट? यू आर ऑल एक्सपर्ट्स इन दैट।
तो अगर ऐसी बात है, बातें बोली नहीं गई है बट समझी गई है, वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, बट आपकी हरकतों से हमें समझ में आया है कि आप क्या कहना चाहते हो. मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हो. सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ इंप्लाइड नेचर. सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ इंप्लाइड नेचर. सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ इंप्लाइड नेचर. और इसी इंप्लाइड नेचर के अंडर 3 टाइप्स आते हैं. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, tacit contracts and quasi contracts. इम्प्लाइड नेचर मतलब क्या? यहां पे आपने ना ही कुछ कहा है और ना ही कुछ लिखा है. जी हां हसन, इशारों इशारों में ही आपको सब कुछ समझ में आ गया है. बड़े बड़े एक्सपीरियंस लग रहे हो आप लोग सब. तब ऐसे केस में उसको इंप्लाइड नेचर कहते हैं. यही इंप्लाइड नेचर 3 तरीके का हो सकता है. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. ओके, यही इंप्लाइड नेचर जो है 3 टाइप का हो सकता है. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. इसको ध्यान से सुनो क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट नोन. टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट नोन. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू डू इज you go and sit in the rickshaw and tell the रिक्शा वाला कि हे रिक्शा वाला प्लीज ड्रॉप मी ऑन FC रोड. अब ऐसे केस में रिक्शा वाला जब रिक्शा स्टैंड पे खड़ा है, उसका ये जो बिहेवियर है इन इटसेल्फ एक्सप्रेसेस दैट ही इज विलिंग टू टेक यू वेयर यू वांट. और आप जब रिक्शा में बैठते हो, it means you have given acceptance that now you want to go to a certain place with this rickshaw wala. Okay, and then of course जैसे ही आप बैठते हो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है और फिर आप बोलते हो कि मुझे FC रोड छोड़ दो. Now you have no idea कि MG रोड से FC रोड पे जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे. Terms and conditions are not known to you. Such a contract is known as an implied contract. Another example could be, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो पुणे से दिल्ली. ओके, अब आप दिल्ली पहुंच गए अपने घर. अब क्या हुआ यहां पे? आपके पास बहुत सारा लगेज था क्योंकि आप पुणे में आए थे क्लासेस करने के लिए और फेस टू फेस क्लासेस 2 महीने चलने वाली थी. तो 2 महीने का सारा सामान आप पुणे में लेके आए थे. अब दिल्ली आ गए. नोबडी केम अनफॉर्चुनेटली टू पिक यू अप एट द स्टेशन. और जब कूली देखता है कि आपके पास इतना सारा सामान है और आप अकेले हो, आता है वो, ओके, एंड ही पिक्स अप योर लगेज एंड यू डू नॉट डिनाई हिम. अब ऐसे केस में व्हेन अ कूली इन अ यूनिफॉर्म इज पिकिंग अप योर लगेज, ओके, एंड इज कैरिंग इट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू, मतलब फ्रॉम द बोगी ऑफ दैट railway to where the exit of the railway station is, it is an implied contract. पैसों के बारे में ना उसने बात की ना आपने बात की. Terms and conditions are not known to both of you all. Such a contract is known as an implied contract. Such a contract is known as an implied contract. But where terms and conditions are known, it is known as a tacit contract. When terms and conditions are known, it is known as a tacit contract. Example, you go to an ATM, you swipe in your card, enter the PIN, enter the amount, and you get the cash.
तो एग्जैक्टली आपको पता है जब मैंने 10,000 रुपए डाला है 10,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट से कम होने वाला है। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन टू बोथ द पार्टीज। सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स यूजुअली गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन, it is an implied contract, whereas where the terms and conditions are known, it is known as a tacit contract. और तीसरा हिस्सा जो है is known as a quasi contract. Those contracts which are implied by law, those contracts which are implied by law are known as quasi contracts. Those contracts which are implied by लॉ, मतलब यहां पे दोनों पार्टीज ने आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया है, नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया है। सिर्फ यहां पे क्या हुआ है, यहां पे कुछ ऐसा हुआ है कि कानून ने आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डाला है कि अब आपको ये जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जाम्पल, you found some lost goods. When you find certain lost goods, lawmakers give you a obligation to find the true owner and return the goods to the original owner. अब ऐसे केस में ये जो obligation है was implied by law and such a contract will be known as a quasi contract. जी हाँ, जहां पे एक साइड पे लॉ मेकर ने आपको ड्यूटी दी है to find the true owner of the goods, वो आपको कुछ राइट्स भी देता है, जैसे कि राइट देगा कि जितना भी खर्चा ट्रू ओनर को ढूंढने में लगा है वो खर्चा आप उस ओनर से रिकवर कर सकते हो। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? देखो, अगर आप चाहते हो इस चार्ट को लिख सकते हो। आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 1 मिनट। प्लीज टेक अ स्टिक नोट एंड राइट इट डाउन एंड यू कैन स्टिक इट इन योर चार्ट बुक। कम ऑन, फास्ट फास्ट। किसी ने पूछा है पेरिशेबल गुड्स के केस में क्या होता है। वैसे तो मैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स में यूनिट नंबर 6 में डिटेल में पढ़ाने वाली हूं, बट बिकॉज कनक आपने ये क्वेश्चन पूछा है, लेट मी टेल यू, पेरिशेबल गुड्स के केस में यू आर अलाउड टू सेल द गुड्स। ठीक है, ओके, सो यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट। वापस से सुनो मेरी बात। इंप्लाइड नेचर, 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन, इट इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। where terms and conditions are known, it is known as a tacit contract. And where a contract is implied by law, it is known as a quasi contract. अगर आपने कुछ कहा है ओरली या कहा है लिखकर, इट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और 5th पॉइंट जो था, दैट इज एन ई कॉन्ट्रैक्ट, जो कितना इजी है, जो हम लोग इनफैक्ट एवरी डे करते हैं। एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एंटर्ड बाय 2 parties थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज नोन एज एन ई कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि अनफॉर्चुनेटली अभी तो नहीं पॉसिबल है, बट बुक माई शो से मूवी टिकट खरीदना, मेक माई ट्रिप से हॉलीडे की फ्लाइट टिकट्स बुक करना, अमेजोन से कुछ सामान खरीदना, या फ्लिपकार्ट से कुछ कपड़े खरीदना, या से फैक्ट्री ए ने फैक्ट्री बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है टू सेल एंड परचेस रॉ मटेरियल थ्रू ईमेल्स। What are these? These are nothing but they are classic examples of e-contracts. तो बदलते वक्त के साथ हमने हमारे कानून को भी बदला है और कहा है आज के जमाने में you can enter into contracts through the electronic means also. Such contracts will be known as e-contracts. Simple. आइए रीड करते हैं, चलो. So on the basis of formation, first express contract. देखो क्या कहता है express contract.
If the terms are expressed by words, it could be either in writing or orally. It is known as an express contract. Implied contracts. Implied contracts comes into existence by implication where proposal or acceptance is made otherwise than in words. Promise is said to be implied. यहाँ पे terms and conditions are not known. Terms and conditions are not known. Whereas tacit contracts में terms and conditions are known to the parties. यहां पे भी obviously without any words. Okay, यहां पे भी otherwise than in words. और जब लॉ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाता है, ओके, और आपको कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस देता है, इट इज नोन एज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. And when two parties enter into a contract using the electronic means, it is known as a e-contract. और आज के लेक्चर का आखिरी हिस्सा जो बहुत ही इजी है, 5 मिनट है मेरे पास, and that is contracts का classification on the basis of formation. कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को? चलो लास्ट टाइप, and that is on the basis of performance. Executed, executory, executed, एंड एग्जीक्यूटरी. और इसी एग्जीक्यूटरी के दो टाइप्स है, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल. एक पीपीटी है, उसी के बेसिस पे ये एग्जाम्पल बताना चाहती हूं. कल जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था, देखो ना यहां पे क्या हुआ है, दो पार्टीज है, आमिर एंड शाहरुख. देयर आर 2 पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, आमिर एंड शाहरुख. अब देखो यहां पे क्या हुआ है, आमिर ने शाहरुख के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है जहां पे आमिर अपनी गाड़ी बेचेंगे और शाहरुख जो है 50 लाख रुपए देंगे इन रिटर्न ऑफ द कार. आमिर गाड़ी बेचेंगे और शाहरुख गाड़ी के बदले में पैसे देंगे. अब एक्ट कहती है दोनों भी पार्टीज ने अगर अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर लिए हैं, तो आमिर का ऑब्लिगेशन क्या है, बोलो ना, आमिर का ऑब्लिगेशन क्या है? आमिर की ऑब्लिगेशन है टू गिव द कार. और शाहरुख का जो ऑब्लिगेशन है दैट इज टू गिव द मनी. अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे केस में अगर दोनों भी पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर दिए हैं, दोनों भी पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर दिए हैं, दोनों भी पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर दिए हैं, आमिर ने भी कार दे दी और शाहरुख ने भी पैसे दे दिए, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. नाम में लिखा है एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड. जिसको जो परफॉर्म करना था वो उसने परफॉर्म कर लिया है. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज
एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हर एक पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब वो पूरी हो चुकी है। द एक्ट इज डन, द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आमिर ने गाड़ी दे दी, शाहरुख ने पैसे दे दिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बट अब एक्ट कहता है देयर इज वन मोर थिंग, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? एक आधी पार्टी या तो दोनों भी पार्टीज ने अभी तक अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है। एक आधी पार्टी ने या तो दोनों पार्टी ने अभी तक अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी नहीं की है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक आधी पार्टी ने या तो दोनों भी पार्टीज ने अभी तक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। से फॉर एग्जाम्पल, आमिर ने तो अपनी गाड़ी दे दी बट शाहरुख ने अपने पैसे अभी तक नहीं दिए। या तो फिर शाहरुख ने तो पैसे दे दिए इन एडवांस बट अभी तक आमिर ने गाड़ी नहीं दी है। या तो ऐसा भी तो हो सकता है, हमने आज कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, आज क्या है? से टुडे इज 1st of January, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस, और परफॉर्मेंस का जो डेट है दैट इज से 10th of January। कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया 1st Jan को और परफॉर्म होने वाला है 10th Jan को। आज क्या है? आज 1st Jan है। जब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है बट परफॉर्मेंस का समय अभी तक नहीं आया है, तो ना ही आमिर ने गाड़ी दी और ना ही शाहरुख ने पैसे दिए हैं। दोनों के साइड से ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, उसको भी हम कहते हैं एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब देखो, जब सारी पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशंस कर लिए हैं, जिसकी जो ड्यूटी थी वो करके खत्म हो चुकी है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बट नाउ अगर किसी के साइड से ऑब्लिगेशंस पेंडिंग है, पहली पार्टी के साइड से, दूसरी पार्टी के साइड से या दोनों भी पार्टीज के साइड से, तो उसको कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और अब ये जो पेंडिंग चीज है, अगर एक ही पार्टी के साइड से बची हुई है, देखो यहां पे सिर्फ आमिर के साइड से बचा हुआ है या तो यहां पे सिर्फ शाहरुख के साइड से बचा हुआ है, एक ही पार्टी का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, इट इज नोन एज यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। इट इज नोन एज यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। इट इज नोन एज यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। और अगर दोनों भी पार्टी के साइड से ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, इट इज नोन एज बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। इट इज नोन एज, बोलो तो, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। बाय मतलब दोनों भी साइड से, यूनी मतलब एक ही साइड से बचा हुआ है। तो देखिए, लेट मी रीड इट आउट। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन इज इन गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एक्ट और फॉरबिनेंस। ये हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 में। When this act is done or executed or forbearance is brought on record, then the contract is known as an executed contract. And what is an executory contract? अभी तक या तो एक पार्टी या तो दोनों भी पार्टी के साइड से ऑब्लिगेशंस पेंडिंग है, इट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, वन पार्टी ने परफॉर्म किया है और दूसरे के साइड से ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। Bilateral contracts where obligation or promise is outstanding on both the parties side, both. और यहाँ पे one has performed, other का outstanding है। So my dear friends, this is all for today.
Please remember, you have two things for homework. One, reading the differentiation between void and voidable contract, and two, void agreement and illegal agreement. So, patient listening के लिए धन्यवाद. Thank you very much. See you all tomorrow. Bye bye. Take care. Keep learning, keep revising. See you soon tomorrow.